میں سب سے پہلے شکر ادا کروں گا گورنر سنگھ کا، کامران کشوری صاحب کا، کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ اس جگہ پہ ہم آج اپنی لانچنگ کنڈکٹ کر سکیں۔ ایک زمانہ تھا کہ خواتین اور مرد جو ہیں ان میں بہت فرق ہوا کرتا تھا، لیکن اب جس طرح چیزیں آگے آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں تو وہ آپ نے سنا ہوگا کہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ میں نے تو ان 16 مہینوں میں کوشش کی کہ میں اپنی آخرت ٹھیک کر لوں، کچھ اور ٹھیک کروں یا نہ کروں، لیکن افسوس مجھے آج بھی اس بات کا ہے کہ جس سسٹم کے خلاف میں لڑ رہا تھا مجھے وہ سسٹم جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم ان کا احترام کریں گے تو ہماری خواتین کا اپنے آپ آٹومیٹکلی قدرتی طور پہ احترام ہوگا۔ بالکل ایسی ہے۔ تو ہم کو چاہیے ایک اچھا انوائرمنٹ دیں، اور یہ مومنٹم جو ہے یہ ایک اچھا انیشیٹ ہے۔ رمضان والوں کی آمد ہے، کیا اس دفعہ کرنے جا رہے ہیں وہاں کے لیے، کیا آپ لوگوں کی پلانز ہیں؟ ہمارا تو سارا سال کام چل رہا ہے، ڈائلیسس سینٹر چل رہے ہیں، لیب ہے فری، مردہ خانہ بنا ہے آپ کے سامنے، اولڈ ایج ہوم ہے، عورتوں کے ہیں، مردوں کے، یتیم خانے، ایمبولینس ہے، میت بس ہے، مطلب تمام ہی پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے حوالے سے راشن پہ بڑا بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ہم پلہ بھی کھڑے ہیں۔ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے جی ہمارے بالکل پاس، ایسی ہے۔ اس میں سے ہم بھی کہیں نہ کہیں ریسٹرکٹ تھے، ہم نے 15 سٹوریز نکالی، آج ان کو جرنی ایوارڈ دیں گے اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہر سال کرائیں گے۔ خواتین کو یا کوئی بھی ہو، بچے ہوں، بڑے ہوں، مرد حضرات ہوں، اگر ان کے کام کے ان کو سراہا جائے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہوتی۔ گروپ کی ہیں اور وہ کسی کا آج ان کا میں یہی کہنا چاہوں گی کہ لیڈیز کو جو ہے وہ سپورٹ کریں، گھر والے سپورٹ کریں، کمفرٹ زون سے تھوڑا سا باہر انہیں نکالیے تاکہ جو ہے ان کا ٹیلنٹ آپ کو نظر آئے۔ بالکل ایسی ہے۔ کیونکہ جب تک ہم کمفرٹ زون کے اندر رہتے ہیں تو ہم وہ سب نہیں کر پاتے، وہ اچیو نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ مومنٹم کی جو ٹیم ہے، ہیرانی سب کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں اس پلیٹ فارم پہ انوائٹ کیا، ہمارا یہاں پر آنا ایک بہت ہی اعزاز کی بات ہے، صحیح۔ اور اتنے خلوص سے انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، تو اس کے لیے تو کوئی ورڈز ہی نہیں ہے نا۔ السلام علیکم، آج ہم موجود ہیں گورنر ہاؤس کے اندر، جہاں مومنٹم کا ایک ایوارڈ شو ہونے جا رہا ہے اینولی، جو ان خواتین کے لیے ہے جو پورے سال محنت کرتی ہیں اور ان کو بیسیکلی ایک ریوارڈ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو وہ ریوارڈ ملتا نہیں ہے۔ تو مومنٹم نے آج یہ ایونٹ آرگنائز کرا ہے گورنر ہاؤس کے اندر، جس کی سی ای او ہیں ہیرا سومرو صاحبہ، ان خواتین کو ایوارڈ دینے کے لیے جن کو جو ہے بیسیکلی ایک موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج یہاں پہ چیف گیسٹ ہیں کامران کشوری صاحب جو گورنر سندھ ہیں، اور مختلف کاروباری حلقوں سے سیلیبریٹیز یہاں موجود ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے 1 to 1 آپ یہ تمام لوگوں سے بات کریں جتنا میکسیمم ہم کر سکتے ہیں، اور ان کی زبانی پوچھیں کہ اس طرح کے ایونٹ ان کو کس طرح پسند آیا، اور اس طرح کے مزید ایونٹس ہونے چاہیے تاکہ ان خواتین کے لیے ایک موٹیویشنز ملے جن کو بیسیکلی کوئی ہمارے معاشرے میں کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی موٹیویٹ نہیں کرتا۔ تو آئیے ہمارے ساتھ اندر چلتے ہیں اور آپ کے مختلف لوگوں سے ملاقات کراتے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں موجود ہیں اور بہت ہی اچھا یہ ایونٹ یہاں پر ہوا ہے، اور میں ایوارڈ کے لیے منتخب انہوں نے کیا مجھے، اور خواتین کو یا کوئی بھی ہو، بچے ہوں، بڑے ہوں، مرد حضرات ہوں، اگر ان کے کام کے ان کو سراہا جائے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بڑا اچھا ماحول ہے اور ہم لوگ سب انجوائے کر رہے ہیں، اور گورنر صاحب ہمیشہ بہت عزت دیتے ہیں، ہمیشہ بلاتے ہیں، ان کی پیار محبت پوری عوام کے لیے، ان کے گھر انہوں نے اپنے دروازے کھولے گورنر ہاؤس کے، تو ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں، اور پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں، پاکستان زندہ باد۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعود صاحب، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے سر، شاید ہی کوئی بندہ ہو جو پاکستان میں آپ کا فین نہیں ہے، اور آج آپ گورنر ہاؤس میں آئے ہیں، وومن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟
सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैंने वुमेन एम्पावरमेंट की जो आप बात कर रहे हैं तो सब मैं बेगम के साथ आया हूँ, इससे जी, बड़ी क्या बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एम्पावरमेंट आपके साथ है। तो नेचुरली ये एक अच्छी कॉज है, अच्छी चीज़ है और इसको सपोर्ट करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान की जो लोग हैं और जो हमारे फर्टिलिटी के लोग हैं उसके अलावा भी जितने लोग हैं सब सपोर्ट करते हैं और सब साथ हैं। सर आपका कोई नया कमर्शियल, कोई नया ड्रामा, काफ़ी टाइम होगा मैं देख रहा हूँ, आउट ऑफ स्क्रीन है आप? नहीं, आपने शायद बेबी बाजी नहीं देखा। तो इस पे ARY पे चल रहा है बेबी बाजी और ग्रीन पे चल रहा है मोहब्बत सतरंगी, सही है। जो जवेरिया ने लिखा है और हम हैं उसमें और काफ़ी कास्ट मेंबर्स हैं हमारे। सही है। बहुत अच्छा जा रहा है। ग्रीन चैनल पे आप देखिए, ठीक है। महसूस कीजिए। हर शाम को 7 बजे चलता है, 5 टाइम, मंडे टू फ्राइडे, तो ज़रूर देखिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं याया साहब और किसी तारुफ के मुताहिद नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कोई भी बंदा, कोई भी बच्चा जब तक स्कोर का प्रोग्राम ना देख ले, मेरे ख्याल से उसका दिन कंप्लीट नहीं होता। और आज आप इस प्रोग्राम में आए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? नहीं, ये सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक ख़वातीन की बात कर रहे हैं, एक ज़माना था कि ख़वातीन और मर्द जो हैं उनमें बहुत फ़र्क हुआ करता था, लेकिन अब जिस तरह चीज़ें आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं तो वो आपने सुना होगा कि ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। तो आई थिंक कि ये जो एक इनिशिएटिव है ये इस हिस्से का एक कड़ी है और मैं समझता हूँ कि ख़वातीन को जिस अंदाज में एम्पावर किया जा रहा है और उनकी बहबूद के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो काम हो रहा है, तो आई थिंक हिरा इसमें एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही है। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। साथ मौजूद हैं ज़फ़र अब्बास रिजवी साहब, JDC। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। सर रमज़ान मुबारक की आमद है, क्या इस दफ़ा करने जा रहे हैं वहाँ के लिए, क्या आप लोगों की प्लान्स हैं? हमारा तो सारा साल काम चल रहा है, डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं, लैब है फ्री, मुर्दा खाना बनाया आपके सामने, ओल्ड एज होम है, औरतों के हैं, मर्दों के, यतीम खाने, एम्बुलेंस है, मैयत बस है, मतलब तमाम ही प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। लेकिन रमज़ान मुबारक के वाले से राशन पे बड़ा भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं और शहरी अफ्तारी के लिए पूरे पाकिस्तान भर में हमारा चल रहा है सिस्टम पूरा, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं और इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो इस बार भी भरपूर तरीके से शहरी में अपना आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मुख्तलिफ लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकात कराएं और जिस तरह मज़ीद सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं हम कोशिश करेंगे कि आपकी उनसे बात करें, मुलाकात करें। अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करें। हमारे साथ मौजूद हैं लिविंग लेजेंड शोएब मोहम्मद साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं, आप ये मोमेंटम का आज प्रोग्राम है, आपको कैसा लगा और ये वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई शक ही नहीं कि पूरी दुनिया में इसकी अवेयरनेस काफ़ी सालों से है और पाकिस्तान में भी ये चीज़ ज़्यादा देखने में आ रही है और विच इज़ समथिंग ग्रेट कि पाकिस्तानी हमारे जो बच्चे हैं फ्रॉम द वर्ड गो अब प्रोफेशनल एटीट्यूड हो गया है उनका, नज़र भी आता है, वो सरफेस भी हो रही हैं चीज़ें और बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर हेड जो हैं वो हमारी लेडीज़ वो कर रही हैं, लुक आफ्टर कर रही हैं। तो इट शोज़ के पीपल आर हेडिंग, स्पेशली द वुमेन एम्पावरमेंट इज हेडिंग टुवर्ड्स इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल ऐसी है। ये बताइएगा PSL चल रहा है, PSL फॉलो कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? और पाकिस्तान क्रिकेट के जो आजकल हालात हैं, क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्योंकि आप लेजेंड हैं और जितना तजर्बा आपको है शायद किसी और को? बिल्कुल पाकिस्तान की क्रिकेट वे फॉरवर्ड ही है, इसलिए कि बच्चों का शौक एवरी डे, एवरी PSL के बाद या एवरी अचीवमेंट के बाद फॉलोइंग हमारे प्लेयरों की जो है बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि शौक बढ़ता जा रहा है बच्चों में और जब शौक एक नेशन में आ जाए और नॉट ओनली द यंगस्टर्स बट जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं वो भी जब कोई बड़े मैच होते हैं तो सब एक पूरा माहौल हो जाता है, फेस्टिव मूड में आ जाती है घर की जो एनवायरनमेंट है। तो इसका दैट शोज के क्रिकेट इज हियर टू स्टे। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यहाँ बैठे तमाम हमारे मेहमान, मैं सबसे पहले शुक्र अदा करूँगा गवर्नर सिंह का, कामरान किशोरी साहब का, कि उन्होंने हमें मौका दिया कि इस जगह पे हम आज अपनी लॉन्चिंग कंडक्ट कर सकें।
میں معیز بھائی کا عراق کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہاں مدعو کیا، اور جس اویئرنیس کی وہ بات کر رہے ہیں، جس طرح لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اسی چیز کی ہمارے اس معاشرے کو ضرورت ہے کہ جو بھی کوئی اچھا کام کرے، جو بھی اچھائی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہے، ہمیں اس کو سراہنا چاہیے، ہمیں اس کی عزت افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں مفادات اور فائدے کا اتنا بڑا کاروبار شروع ہو چکا ہے جس تک آپ اور ہم نہیں پہنچ سکتے۔ جس پاکستان کو ہم نے شہادتوں، قربانیوں اور مقاصد کے لیے حاصل کیا تھا، آپ یقین جانیے ہم سبھی اس سے ہٹ چکے ہیں۔ حاصل تو اس لیے کیا تھا کہ جب اپنا وطن ہوگا تو وہاں سب سے پہلی چیز ہماری ماں، بہن اور بیٹیوں کی عزت محفوظ ہوگی۔ اور کس لیے لی تھی یہ قربانی؟ کیونکہ ہم غیر محفوظ کا لفظ میں اس لیے کہوں گا کہ سمجھتے تھے اپنے آپ کو اس وطن میں جہاں سب رہ رہے تھے، اس ہندوستان میں۔ تو ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ یہاں ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت نہیں ہے، اور پھر ہم نے یہ سوچا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بنے گا تو وہاں اسلام بھی مزید پھیلے گا اور تمام ہی اقلیتوں کو ایک محفوظ مقام حاصل ہوگا۔ لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کہ ہمارے بڑوں نے یہ کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ جن کے ہاتھوں میں یہ ملک چلا جائے گا وہ زمینوں کے کاروبار اور ضمیروں کے کاروبار کا سودا کر رہے ہوں۔ اور بات کرنے سے بھی ڈریں گے۔ ان 16 مہینوں میں میرے یہ سارے دوست گواہ ہیں کہ میں نے پہلے دن سے اور آج تک کبھی میں ہچکچایا نہیں، نہ سسٹم کے خلاف بات کرنے میں۔ ظفر عباس بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے جام صاحب بھی بیٹھے ہیں، حمزہ تبانی بیٹھے ہیں، اطہر اقبال بیٹھے ہیں، فضل دادا بھائی بیٹھے ہیں، سعود بھائی بیٹھے ہیں، کہ میں نے کب یہ کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے اس منصب پر بیٹھ کر سچ بات کرنے میں۔ میں نے تو ان 16 مہینوں میں کوشش کی کہ میں اپنی آخرت ٹھیک کر لوں، کچھ اور ٹھیک کروں یا نہ کروں۔ لیکن افسوس مجھے آج بھی اس بات کا ہے کہ جس سسٹم کے خلاف میں لڑ رہا تھا مجھے وہ سسٹم جیتتا ہوا نظر آ رہا، کیونکہ آج پھر طاقت کا سرچشمہ وہی لوگ ہیں جو سسٹم چلا رہے تھے، اور ہم چاہتے ہوئے بھی ان سے جان نہیں چھڑا سکے۔ وہ ہر ایک چیز کو خریدنا جانتے ہیں، اور جب بکنے کے لیے سبھی تیار ہوں تو خریدار کو اس سے اچھی اور کیا چیز ملے گی، اور پیسہ بھی وہ جو آپ ہی کا ہو۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ خریدا بھی تو ہمارے پیسوں سے ہی ہمیں خرید لیا، اور ہم اتنے بے ضمیر ہوئے کہ اپنے ہی پیسوں کے ہاتھوں بک گئے۔ یحییٰ حسینی بھائی سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو، یہ میچ فکسنگ ہے بھائی۔ پہلے سے طے شدہ میچ ہے، اس میں اس کھلاڑی کی کوئی گنجائش نہیں جو جذبے اور قوم کے لیے کھیلے، اسے تو 12ویں نمبر پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، آج کل لوگ مجھے، ابھی بھی میں نیچے بیٹھا تھا اور اندر بھی بہت سارے دوست کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کا کیا ہوگا، آپ آگے کنٹینیو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تو میں نے اس گورنر ہاؤس میں بہت سارے کام وہ کیے جو عمران خان صاحب کہتے تھے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے کہ جب اقتدار ملے گا تو گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔
تو شاید ان کی کوئی مجبوری تھی، لیکن میں نے آ کے وہ دروازے کھول دیے. تو ان کا ایک کام تو میں نے پورا کیا. پھر انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی بنے گی. تو میں نے یہاں پیچھے آپ کے عقب میں 24,000 اسکوائر فٹ پر ایک آئی ٹی کی منی یونیورسٹی بنا دی، جس میں 3 سیشن میں روزانہ 15,000 بچے پڑھتے ہیں اور پورے ہفتے میں 50,000. تو دوسرا کام بھی میں نے ان کا کر دیا. تیسری بات وہ کہتے تھے کہ جب تک میں وزیر اعظم ہوں تو پھر بھی صحیح ہوں، ہٹ گیا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. تو میں بھی آج ان کا تیسرا کام بھی کرنے کے لیے تیار ہوں کہ جب تک اس منصب پر ہوں تو بہت سارے الفاظ اور باتیں اور جو لب ہیں وہ خاموش ہیں. جب کسی سازش کا شکار ہوں گے تو میرے خیال سے اس سے زیادہ خطرناک ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اپنے سارے انیشیٹوز، ہر وہ کام، ہر وہ وعدہ جو میں نے اپنے لوگوں سے کیا ہے، اپنے عوام کے ساتھ کیا ہے، اسے پورا کرنے کے لیے رات اور دن دونوں لگا دیں گے. وہ اس لیے کہ سازشیں کرنے والے اپنا کام کرتے رہیں. اگر ہم نے دل سے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم نے کچھ کرنا ہے اور جواب صرف اللہ کو دینا ہے. یہ جو پیچھے آئی ٹی کی ہم نے مار کی جس میں بچے پڑھ رہے ہیں، ایک سیشن 5,000 کا ہوتا ہے، اس میں 3,000 میری بہنیں بیٹیاں ہیں. آپ یقین کریں جب میں بات کرنے جا رہا تھا تو ایک بہن نے مجھے آواز دے کے روکا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے مجھے کہا سر میں صرف آپ سے ایک بات کرنا چاہتی. اس نے کہا کہ مجھے 1 مہینہ ہوا ہے یہاں آتے ہوئے، اس سے پہلے میں اپنے ٹیلی فون کارڈ میں ایزی لوڈ کرانے کے لیے اپنی کزن سے پیسے ادھار مانگتی تھی. میں اپنی کالج جانے کے لیے اپنا جو خرچہ تھا وہ اپنے رشتہ داروں سے، کیونکہ میرے والد کی تنخواہ صرف 35,000 روپے ہے. اس نے کہا میں نے 1 مہینے میں یہاں کے اتنا کام کیا ہے کہ مجھے اس مہینے $200 ملے. تو اس $200 پہ وہ آنکھوں میں آنسو آ کے رو رہی تھی کہ اب مجھے کسی سے ادھار نہیں مانگنا پڑے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ $200 2,000 میں بھی تقسیم ہوں گے، آگے جائیں گے 5,000 $8,000 بھی مہینہ انہی نوجوانوں میں سے یہ لوگ کمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ یہ کسی سیاسی مقصد کے لیے میں نے یونیورسٹی کا قیام نہیں کیا. اس میں 4.5 لاکھ 5 لاکھ بچوں نے ٹیسٹ دیے اور میرٹ پہ 50,000 بچوں نے کوالیفائی کیا. اس میں کسی کی سفارش، کسی کا کوئی کارکن نہیں بیٹھا ہوا. اس میں اس شہر، اس صوبے کے وہ نوجوان بچے بچیاں بیٹھے ہیں جن کو موقع نہیں مل رہا تھا، جن کی مجموعی طور پر ماں باپ کی تنخواہ ملا کے 50,000 سے اوپر نہیں ہے، ذہین ہے، لیکن اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ وہ کہیں جا کے $1,000 $2,000 کا کورس کر سکیں. اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ ان کو کوئی 1 لاکھ اور 2 لاکھ کی جاب دے سکے. دوسرا راستہ یہ تھا کہ انہیں ہم پھر ایک دفعہ دھوکہ دے کے بیوقوف بنا دیتے، ایک سیاسی مجمع پنڈال میں لگاتے، اپنے لیے نعرے لگواتے اور پھر اس کے بعد میں جا اور وہ جا، جو آج تک اس 76 سالوں میں ہوتا رہا ہے. میں آج یہ تسلیم کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا شخص مجھے نظر نہیں آیا جو عوام کے لیے سوچتا ہو. یہاں ایوانوں میں صرف حصے اور بکرے ہوتے ہیں. یہاں پر تم یہ بن جاؤ اور میں یہ بن جاؤں، تم میرے لیے جگہ چھوڑو میں تمہارے لیے جگہ چھوڑتا ہوں، تم میری کرپشن پہ پردہ ڈالو میں تمہاری کرپشن پہ پردہ ڈالوں گا. یہاں لوگوں کے بزنسز پر، ان کی جیبوں پہ نظر ہوتی ہے حکمرانوں کی. کیسے ترقی ہوگی اس ملک میں؟
कैसे बढ़ेगा ये मुल्क? शर्म ही नहीं आती कि 1 और 2 बिलियन डॉलर मांग रहे हैं IMF से, वो भी किस्तों पर। पैरों पे खड़ा होने का एक खुददार कौम, एटमी ताकत, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सिर्फ नाम का है। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। कोई बैठकर ये नहीं सोच रहा कि मुल्क कैसे तरक्की करेगा। कोई बैठकर ये बात नहीं कर रहा कि ये जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, ये जो नौजवान है, ये जो हमारे इस मुल्क के बिजनेसमैन हैं, फनकार हैं, हमारे सहाफ़ी हैं, सब अपनी मदद खुद ही कर रहे हैं। बल्कि कहीं 27, कहीं 28, कहीं 18, कहीं 9 NOCs लेने के मुंतज़िर हैं अपने कारोबार करने के लिए। वैसे तो सिक्योरिटी के लिए हमारे पास इदारे कम हैं, पुलिस नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि अगर कोई अपनी एक दुकान का शटर लगा रहा हो या कोई छत डाल रहा हो तो फौरन पुलिस इदारे सारे पहुंच जाते हैं। जैसे कॉलेज के ज़माने में गर्लफ्रेंड के साथ जिस गली में भी जाओ पुलिस आ जाती, ऐसा लगता था सारे शहर में फैली हुई है। अरे सोचे ना आप, बेचारे हमारे जाम साहब मुझे बताते थे किस्सा, कहते हैं साईं मैं सूट वूट पहन के जब किसी अपनी दोस्त, गर्लफ्रेंड तो नहीं कहते थे, साईं जिस गली में जाए पुलिस अच्छे, कितनी सारी पुलिस है। तो देखें, ऐसे ही लगता है कि जब आप कोई अपने लिए काम करने जाते हैं तो सारे इदारे आ जाते हैं, नोटिस सबको पहुंचते हैं। ऐसा लगता है लिखने वाला हर रोज बैठ के आपके घर का पता, एड्रेस उसको याद है। लेकिन कहीं अच्छा काम करना हो, जहां जफर अब्बास पहुंच सकता है JDC से, वहां हम नहीं पहुंच रहे। जहां हमारे वो लोग, वो साथी जो काम करना चाहते हैं, उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाती। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं और दिल से बता रहा हूं कि अब ऐसा नहीं होगा। कम से कम मैं अपनी ज़ात से आपको ये यकीन दिला रहा हूँ, बहैसियत गवर्नर सिंध भी, और अगर मैं गवर्नर सिंध नहीं भी हूँ तो ये जितने इनिशिएटिव्स चल रहे हैं मैं उसे आगे भी चलाता रहूँगा। ताकतवर पाकिस्तान के नाम से मैंने अपनी NGO रजिस्टर कर ली है। इसी ताकतवर पाकिस्तान के इनिशिएटिव्स को लेके मैं गली गली जाऊँगा और इसी तरह से, इसी हौसले के साथ, बल्कि इससे 3 गुना ज़्यादा हौसले के साथ मैं काम करता नज़र आऊँगा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इन 16 महीनों में मैंने 1 रुपए की किसी करप्शन में, किसी स्कैंडल में मेरा ना हाथ है, ना मेरा नाम है, ना मेरा पैर है। तो मैंने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना है, मैंने दूसरे दिन लंदन की फ़्लाइट नहीं लेनी, और अल्हम्दुलिल्लाह सेहत भी अच्छी है, सारे टेस्ट कराएं, सारे अच्छे आए। ये भी बहाना नहीं है। जाम साहब कह रहे थे साईं लंदन इलाज तो करा सकते हैं आप, फिर जब दोबारा गवर्नर ही मिले तो आप वापस आइएगा। मैंने कहा साईं सारे टेस्ट करवा लिए हैं, और डरता डराता मैं किसी से नहीं हूँ सिवाय मेरी बीवी के जो यहाँ बैठी है, तो उससे फिर निमट लेंगे, कोई मसला नहीं है। बाकी खौफ खुदा है, अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। इस मनसब पर अल्लाह ने बिठाया, जब तक बिठाए रखेगा अल्लाह के हाथ में है। जब अल्लाह को मंजूर नहीं, किसी की कोई ताकत ना बिठा सकती है ना उतार सकती है। हर फिल्म का एक एंड होता है, सभी को पता है, जाना तो सभी ने है, लेकिन अगर एंड अच्छा हो तो खुशी होती है। और मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी है, जो मैंने स्टार्ट में कहा, अभी मेरे ये ओमानी कौंसल जनरल बैठे हैं और उनकी मिसिस बैठी है, मेरी सिस्टर। आपको पता है वो मुझे दोनों कह रहे थे कि हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। तो भाई इससे बड़े एजाज़ की क्या बात हो सकती है। बशीर जान मोहम्मद साहब जो तलो के ऑनर हैं, कल उनका परसों मैंने वॉइस नोट सुना, खुद भेजा, मुझे कहा मैं काबतुल्लाह में बैठा हूँ, हरम में अंदर बैठा हूँ और आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। तो अगर मेरे ऐसे बुजुर्ग, ऐसे बहन भाई, ऐसे दोस्त हों तो मुझे कोई गम नहीं है, कोई फिक्र नहीं है,
آج کا دن یہ تقریب جو ہے جس عنوان سے ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں اپنی بہن بیٹیوں ماؤں کو اس معاشرے میں سب سے پہلے عزت دینی ہے اور ان کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں. ہم اپنی جرنی ایوارڈ کا آغاز کرتے ہیں. انیلا سہیل. یس میم. حمیرہ فیشن ڈیزائنر. مجید سومرو صاحب. یس میڈم. یس میڈم. کامران رحیم صاحب آپ شیف ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے معیز بن زاہد صاحب جو کو فاؤنڈر ہیں مومنٹم کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے بہت بہت مبارک ہو اس کامیاب ایونٹ کے اوپر, اور کیا کہنا چاہیں گے اس ایونٹ کے بارے میں؟ جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا. اللہ کا بہت شکر ہے, ایک بہت بہترین لانچنگ ہوئی اور ایک اچھے لیول پہ جا کے ہوئی, گورنر ہاؤس میں ہوئی. اور سب سے بہترین بات اس کی یہ ہے کہ گورنر صاحب خود موجود تھے, اور گورنر صاحب کے انہوں نے اس ایونٹ کو ہماری آرگنائزیشن کو لانچ کیا ہے. بالکل, تو ہمارے لیے تو بہت ہی اعزاز کی بات ہے. ہم جسے کہتے ہیں کہ اب یہ پہلا اسٹیپ تھا, اور پہلے اسٹیپ میں ہی ہم نے اس بلندی کو چھو لیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر مزید ہم اللہ کا پورا امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے کہ یہ اور جا کے جسے کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ, تو وہاں تک یہ انشاءاللہ تعالیٰ مومنٹم کا نام ہوگا انشاءاللہ, گلوبلی انشاءاللہ اس کو لے کے جائیں گے. بالکل ایسی ہے, اور میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کو جن خواتین کو یہ ایوارڈ ملا ماشاءاللہ وہ بہت خوش ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی اپریسیشن ہے یہ خواتین کے لیے؟ فرسٹ پہلی بات یہ کہ ان لوگوں نے اپنی جرنی جو تھی ان کو بڑا میرٹ بیس ان کو اوارڈس ملے تھے, جنہوں نے اپنی جرنی شیئر کی تھی ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ, اور ان کو فلٹر آؤٹ کیا تھا. 50 سے زیادہ ہمارے پاس وہ تھی اسٹوری شیئر ہوئی تھی, جس میں سے ہم نے 15 شارٹ لسٹ کی تھیں, اور جو آج 15 خواتین جن کو اوارڈ ملے, جو اچیومنٹ ان کو ملے گورنر صاحب کے ہاتھوں سے, وہ ان کو وہ ڈیزرونگ تھیں. بالکل صحیح. تو باقی بھی بہت ڈیزرونگ ہے جو خواتین جن کو نہیں مل پائے, مگر انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہے کہ فیوچر میں جو ہمارے مزید لائنڈ اپ پروگرامس ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم ضرور چانس دیں گے ایوارڈس. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. السلام علیکم. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیرا سومرو صاحبہ جو سی او ہیں مومنٹم کی. میم سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو اس کامیاب ایونٹ کی. کس طرح آپ دیکھتی ہیں کہ جو جن عورتوں نے اتنی اسٹرگل کری ان کو آج ریوارڈ دینے جا رہی ہیں, کس طرح آپ دیکھتی ہیں اس ایونٹ کو؟ السلام علیکم. پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے اس مقام پہ پہنچایا کہ آج ہم اپنا ایونٹ گورنر ہاؤس میں ہم نے منعقد کیا ہے, اور گورنر صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں اور ہمارے کام کو سراہا اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنے گھر میں ہمیں جگہ دی, اور آج ہم ان کے گھر میں اپنی تقریب ہم نے منعقد کی ہے. اللہ کا شکر ہے. ویمن امپاورمنٹ, میری آپ سے بات چیت ہوتی رہتی ہے, آپ جانتے ہیں میرے کام کو. 14,000 خواتین ہمارے پاس, تو اس میں سے انہوں نے اپنی اسٹرگل سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی تھی. بالکل صحیح. اس میں سے اتنی سٹوریز آ گئی تھی, ہر ایک کا کام بہتر ہے. مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس. اس میں سے ہم بھی کہیں نہ کہیں ریسٹرکٹ تھے. ہم نے 15 سٹوریز نکالی, آج ان کو جرنی ایوارڈ دیں گے, اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ, ہر سال کرائیں گے. اور آگے آپ کو پتہ ہے خواتین کا عالمی دن بھی آ رہا ہے, اس کو بھی بھرپور. آپ کیا سمجھتی ہیں جو ریوارڈ دینا یہ خواتین کے لیے کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. بچے کے لیے جیسے بہت ضروری ہے کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ بچے آتے ہیں, تو ایک خوشی الگ ہوتی ہے سال کے اینڈ میں. تو اس طریقے سے خواتین کا بھی حق ہے کہ وہ ایک دن اپنے لیے نکالیں, تیار ہوں, ایونٹ میں آئیں, جو ان کو پتہ چلے کہ یہ ایونٹ ہمارے لیے آرگنائز کیا ہے. اور سب سے بڑی بات, اس سے بڑی آنر کی کیا بات ہوگی کہ ان کو آج ہمارے چیف گیسٹ گورنر صاحب آج ان کو اپریسیشن ایوارڈ. بالکل میم, بہت بہت مبارک آپ کو. اس طرح کے کام کرتے رہیں, معاشرے کے اندر ضرورت بھی ہے اس طرح کے کاموں کی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر پراچا صاحب, ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ مومنٹم جو ہے ان کو آج کا ایونٹ کیسا لگا, اور یہ وومن امپاور کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جناب یہ جو آج مومنٹم تھا, اور یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو تھا, اور ہم نے دیکھا اس پلیٹ فارم کے اوپر کافی خواتین کو اپنے صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملا, اور ایوارڈ جو دیے گئے اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی. بالکل. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی آبادی مردوں سے زیادہ خواتین کی ہے, اور ہمارے ہاں ایک حد میں رہتے ہوئے ضرور عورت کو ترقی کرنی چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری بہنیں بیٹیاں
हमारे जो प्रोफेशनल हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या अकाउंटेंट हैं, वो जाके घर में खानादारी संभाल लेती हैं, तो उनका फिर हम जो टैलेंट है वो ज़ाया करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ लड़कों के मुकाबले में लड़कियाँ और औरतें ज़्यादा ज़हीन हैं, और उनको अब वो बात नहीं रही कि जी उनको बाहर निकलने के अंदर गैर महफूज हों। सर बस कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया, ये मेरे ख्याल से वो इवेंट है जिसमें औरत को अप्रिशिएट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये इवेंट है और ऐसे और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे औरतों को अप्रिशिएट किया जा रहा है, तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। ख़ास तौर पे जो इन्वायरमेंट होना चाहिए काम करने का ऑफिसेज़ वगैरह में, अगर हम इनका एहतराम करेंगे तो हमारी ख़वातीन का अपने आप ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पे एहतराम होगा। बिल्कुल ऐसी है। तो हमको चाहिए एक अच्छा इन्वायरमेंट दें, और ये मोमेंटम जो है ये एक अच्छा इनिशिएट है, और मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह के और भी कई प्लेटफॉर्म जो हैं बनेंगे, और इससे जो वुमन है वो एम्पावर होगी, बिल्कुल ऐसी और है। सेफ और सिक्योर होगी। बिल्कुल ऐसी। सर थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद बुंदू खान साहब, पायनियर हैं और बारबेक्यू के अंदर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि हम बचपन से हम बड़े हो गए, जो बुंदू खान का टेस्ट हमारी ज़बान पे जो एक डेवलप हुआ है वो आज तक हमें दोबारा नहीं मिला, ऐसी इसके अंदर क्या जादू, ऐसी क्या खासियत है? सर सबसे बड़ी बात तो ये कि तो हमारी नीयत, दूसरा सबसे बड़ी बात है हम कस्टमर नहीं समझते, हम कस्टमर को समझते अल्लाह ने एक हम फरिश्ता भेजे तो हम फरिश्ता समझ को खाना खिलाते हैं। जब आपकी नीयत साफ होती है टेस्ट तो खुद आ जाता है। बिल्कुल सही है। और दूसरी हमारी रेसिपी 4 और जनरेशन हो गई हमारी, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, मैं, अब मेरा बेटा आ मगर गया। मजे की बात है वो टेस्ट आज तक मेंटेन है, चेंज नहीं हुआ। सर असल में वो रेसिपी हम सारी अपने हाथ में लेके चले, हमें रेसिपी किसी को दी नहीं है, सारी हमारी घर में रेसिपी बनाई जाती है और फिर बाद में हम होटल पे ला के अपने कबाब वगैरह बना के फिर लोगों को खिलाते हैं। सर अल्लाह पाक बरकत है आपको, इसी तरह जो है वो करते रहें, काम करते रहें, और जो लोगों को जो है ना एक डिलीशियस खाना देते रहें। इंशाल्लाह देते रहेंगे। हम पाकिस्तान में ये ब्रांड एक ऐसा ब्रांड है जो फुटपाथ से शुरू हुआ भाई, और ये एक सनत है। इस सनत हमने स्टार्ट की एक फुटपाथ मेरे ग्रैंडफादर ने, और 40 सीखे ग्रेडी लेके स्टार्ट किया। आज सुबह अलहमदुलिल्लाह आप जहाँ भी जाते हैं आप देखते हैं बुंदू खान, इसलिए कि हम एक टेस्ट दे रहे हैं लोगों को, खुद सर्विस देते हैं, सारी चीज़ें देते हैं। और ये एक ऐसी सनत है भाईजान, इसके अंदर आपको ना किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, ना आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर आप करना चाहते हैं फुटपाथ से शुरू करें, 40 सीख लें, रेडी लें और काम शुरू करते हैं, अल्लाह आपको यहाँ तक पहुँचे। मगर सबसे बड़ी चीज़ आपकी नीयत और आपके ध्यान आ रही है। सर बिल्कुल ऐसी है, और मैं तो खुद इस बात का गवाह हूँ, मुझे अगर बारबेक्यू खाने का शौक हो मैं बुंदू खान के अलावा कहीं और नहीं जाता। सर उसकी वजह है जो बारबेक्यू हम आपको खिला रहे हैं, पहले हम उसको खुद टेस्ट करते हैं, जाहिर बात है उसको हम खुद टेस्ट करते हैं, वो कस्टमर को खिलाते हैं। बाजार मुस्तफा खरीदार खुदा, बिल्कुल ऐसी आप अच्छी चीज़ बेचेंगे अल्लाह फरिश्ते भेजेंगे आप। बिल्कुल ऐसी है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं सईद हनीफिया साहब, जो पायनियर हैं हंटर बीफ के अंदर, पूरी दुनिया में इनकी ब्रांचेस हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि पायनियर है माशाल्लाह हंटर की बीफ के अंदर, और बहुत ज़बरदस्त आप लोगों का टेस्ट है, किस तरह आप लोगों ने डेवलप किया हुआ है, और माशाल्लाह पूरी दुनिया में आप लोग फैल चुके हैं और स्टिल आप लोगों ने टेस्ट को मेंटेन किया हुआ है, इसके पीछे राज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह से ये आज की रेसिपी नहीं, 1889 शिमले से रेसिपी है, जो कि मेरे वालिद मोहतरम अलहाज मोहम्मद हनीफ शिमलवी की जो है ना वो ईजाद करदा है। और ये एक प्रोसेस होता है, मीट प्रोसेस हंटर बीफ बनाने का। जब हम इसके अंदर मसाले वगैरह लगाते हैं, नमक लगाते हैं, तो वो सारा जो है ना वो उसका जो वेट है वो वेट अपने लूज़ करता है और वो हंटर बीफ की शक्ल में बन जाता है। तो ये ड्यूरेबल हो जाता है, आप महीनों आप उसको फ्रिज में रख के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमने देखा कि आप मोमेंटम के प्रोग्राम में आए हैं, हमने देखा कि मोमेंटम के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है आपकी, क्या कहते हैं इस इवेंट के बारे में, और ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने गवर्नर कामरान टिसौरी साहब का बहुत मशकूर हूँ कि वो अक्सर व बेशतर हमें इनवाइट करते रहते हैं और इतना ज़बरदस्त बनाया। उसके बाद मेरी बहन हिरा और मोइज़ जो है, इन्होंने जो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम किया वुमेन डे के ऊपर। इससे पता है कि इससे पब्लिक के अंदर ना एक थोड़ा सा एक रुझान पैदा होता है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में ख़ासतौर से पाकिस्तान कराची के अंदर लोग इतने परेशान हैं और इतने बिजी हैं और इतने अपने मसाइल में उलझे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट चाहते हैं। तो यहाँ आ गए, एक तो माहौल बहुत अच्छा है और फ्रेश हवा लग के तो आदमी समझता है कि हाँ भाई मैं किसी अच्छी जगह आ गया हूँ, और ये बहुत अच्छा इक़दाम है, ऐसा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब, उनसे पूछते हैं इनको आज का हमारा इवेंट जो है ये किस तरह देख रहे हैं, और इस तरह के मजीद इवेंट्स होने चाहिए हमारे माशरे में या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मैं सबसे पहले टी सन्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे बात हो रही है, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक इवेंट का ताल्लुक़ है, ऐसे इवेंट्स कराची शहर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, कराची शहर के माहौल के लिए, कराची शहर की खुशी के लिए, अमन के लिए, ताकि सब
लोग मिल बैठें और हंसी खुशी बातचीत हो, एक जो गुबार जैसा छाया हुआ है वो ख़त्म हो। तो मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट गवर्नर साहब को जाता है कि उन्होंने इस गवर्नर हाउस को इतना अवामी कर दिया कि वो लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि गवर्नर हाउस में जाएंगे, अब जो चाहे आ सकता है गवर्नर साहब का मेहमान। इजीली अप्रोच हो गई है गवर्नर हाउस में आने की, और ये खासतौर पे जो औरतों को एम्पावर किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान की आबादी या पाकिस्तान का वो देखें तो 52% ख़वातीन है। बिल्कुल ऐसी है। तो उनका तो हक बनता है कि उन्हें अहमियत दी जाए, और हमारे इस्लाम में भी यही है कि ख़वातीन को अहमियत दी जाती है, क्योंकि एक अच्छी माँ जो होती है एक अच्छे माशरे को तश्कील देती है। बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो you. मच। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान जाफरी साहब, जो मुख्तलिफ NGO के लिए जो है वो तराने लिख चुके हैं, और इनसे आज बात करते हैं। उनको अवार्ड भी मिला है। सर, कितना मोटिवेशन है ये अवार्ड मिलना और इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज होना? अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशाइन बात है इस तरह की, ये जो ख़ास तौर से आज जो जिस मौजू पे मोमेंटम औरत के लिए जिस तरह औरत मर्द के शाना बशाना काम कर सकती है, हिरा और मुइज़ ने आज जिस तरह का ये इतना बड़ा इवेंट सजाया जिसमें गवर्नर साहब ने ख़ुद आके इसको अप्रिशिएट किया, ये बहुत बड़ी बात है और ऐसा होना चाहिए। मैं बतौर शायर यहाँ पे मैंने शिरकत की थी और मुझे गवर्नर साहब की तरफ से प्राइड ऑफ पाकिस्तान का ये अवार्ड मिला है। बहुत खुशाइन प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और मैं समझता हूँ ये सनद नहीं है, ये अवार्ड बस ये हौसला अफजाई का एक ज़रिया है। मुझसे बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नज़र में आया तो ये मुझे मिल गया। मुझसे बहुत अच्छे लोग काम आने वाले दिनों में कौन सा ऐसी कोई शायरी या तराना लिखने जा रहे हैं? वैसे तो मैं कराची की JDC का ऑफिशियल तराना, फिक्सड का ऑफिशियल तराना, कराची की तमाम नुमाइंदा जमातों के सियासी, और इंशाल्लाह गवर्नर साहब ने मुझसे ख़ुद कहा है कि इन्होंने इनकी एक NGO है ताकतवर पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसी है। इंशाल्लाह इसका भी तराना मैं ही करूँगा इंशाल्लाह, जल्द आप देखेंगे। बहुत बहुत मुबारक आपको, इसी तरह काम करते रहें, कौम की जो खिदमत करते रहें। बहुत जज़ाकल्लाह। बस एक नज़्म के पढ़ूंगा मैं जाते जाते कि भाई मेरे अगर चाहिए कुछ हुनर, अपना लहजा बदल तू संवर जाएगा, कामयाबी तेरी तुझको मिल जाएगी, देने तेरा पता खुद हुनर जाएगा, तेरे लहजे में होगी अना जो बहुत, तू जहाँ है वहीं पर ही रह जाएगा, अपने किरदार से कर अना को फना, वरना किरदार भी तेरा मर जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं अदील शुजात साहब, और इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में? इवेंट वाज ऑसम, बहुत अच्छा लगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे मैंने देखे। कमरा टिसोरी साहब ने जिस तरह स्पीच करी वो बहुत अच्छी थी, जो मोटिवेशन थी वुमेंस के लिए। तो बस और क्या कहूँ। आप क्या कहते हैं, इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए? बिल्कुल होते रहना चाहिए ऐसा इवेंट, और इन फ्यूचर भी बड़ा फ़ायदा होगा। जिस तरह का ये एक छोटा सा प्रोग्राम को जिस तरह इन्होंने एक बड़े प्रोटोकॉल के साथ किया गया, अगर इस तरह का प्रोटोकॉल अगर मिलता रहा छोटे छोटे प्रोग्राम्स को, तो छोटा प्रोग्राम पे छोटा नहीं रहेगा, फिर बड़ा बन जाएगा वो। अब हमारे साथ मौजूद हैं बुरहान बशीर साहब, और इनसे बात करते हैं कि उनको ये इनिशिएटिव कैसा लगा मोमेंटम का। सर, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और लेडीज़ को ज़्यादा आगे करना चाहिए, क्योंकि इन द एंड जो है वो लेडीज़ पावर ही होता है। कितना ज़रूरी है कि लेडीज़ को एम्पावर करना और उसकी हौसला अफजाई करना, एज अ शौहर समझ लें, भाई समझ लें, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि लेडीज़ को हमेशा आगे रखना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ एम्पावरमेंट ही ज़्यादा अच्छी होती है। कि मतलब अगर आप किसी लेडीज़ के लिए आप इतना अच्छा कर रहे हैं इवेंट, तो आपको ये करते रहना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं मिस हुमैरा, जिनको आज अवार्ड मिला है डिज़ाइनर की फील्ड के अंदर। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इनको आज कितनी इंकरेजमेंट मिली इस तरह के इवेंट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र, और उसके बाद जो है गवर्नर साहब का, हिरा का, जिन्होंने जो है अवार्ड दिया। और सबसे बड़ी बात इस अवार्ड की ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये वो अवार्ड नहीं है जो खरीदे और बेचे जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, और टैलेंट की बुनियाद पर है कि हर एक का टैलेंट देखा, उसे उस तरह से जो है अवार्ड दिया। मैं ये कहना चाहूँगी कि लेडीज़ को जो है वर्क करना चाहिए, और मैंने भी स्टार्ट किया था, बहुत छोटे पैमाने पर लिया था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा वर्क कर रही हूँ। तो सपोर्ट करें घर वाले भी, और आपको पता है कि आजकल महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही मिलकर अगर काम करते हैं तो एक घर बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। कितनी इंकरेजमेंट और कितनी जो है हौसला अफजाई होती है इस तरह के अवार्ड से? देखें, हौसला अफजाई उस सूरत में होती है कि जब अवार्ड एक तो खरीदा या बेचा ना गया हो, जी जी बिल्कुल, तो वो एक खुशी होती है कि हाँ जी हमने कुछ किया था, हमारा एक एफर्ट नजर आई उन्हें, तो उन्होंने हमें अवार्ड दिया, तो हमारा फिर दिल चाहता है कि हम नेक्स्ट जो है वो बहुत अच्छा मजीद जो बेहतर है करें। मजीद बेहतर करें। और गवर्नर साहब का भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं जिन्होंने बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं।
आपके सामने ही है। जी जी और मैं यही कहना चाहूँगी कि लेडीज़ को जो है वो सपोर्ट करें, घर वाले सपोर्ट करें, कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर उन्हें निकालिए ताकि जो है उनका टैलेंट आपको नज़र आए। बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि जब तक हम कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं तो हम वो सब नहीं कर पाते, वो अचीव नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। तो थोड़ा सपोर्ट करें, थोड़ा बैक पर रहें, जेंट्स और लेडीज़ को जो है आगे बढ़ाइए इंशाल्लाह और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी इवेंट पे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा अली साहिबा जो ऑनलाइन काम कर रही है, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, बहुत सारी औरतों के लिए मोटिवेशन है। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये बताएं कि ऑनलाइन क्या काम कर रही हैं और कब से कर रही हैं और आप क्या कहती हैं आज की इवेंट के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मोमेंटम की जो टीम है, हिरानी सर सबका बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया। हमारा यहाँ पर आना एक बहुत ही एजाज़ की बात है। सही है। और इतने खुलूस से उन्होंने हमें इनवाइट किया है, तो इसके लिए तो कोई वर्ड्स ही नहीं है ना। रही बात मेरे काम से रिलेटेड, तो मैं पिछले 8 से 10 साल से काम करती हुई आ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग पूरे टीम वर्क अपने आप को ग्रेजुअली इसको आगे से आगे लेते चले जा रहे हैं ना। मतलब काफ़ी हम लोगों ने इस फील्ड में हार्ड वर्किंग की है। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे मेरे हर मामले में, चाहे वो घर के मामलात हो या चाहे काम से रिलेटेड हो, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, तो उनकी बहुत सपोर्ट रही है। और हम दोनों ही माशाल्लाह से जो है वो हमारे पास ये नहीं था कि मैं अगर औरत हूँ तो मुझे ये काम करना है, अगर वो मर्द है तो उन्हें ये काम करना है। काम की कोई नहीं था कि हमने बस। कितना मुश्किल होता है बीइंग अ फीमेल काम करना और ये सारी चीज़ों को मैनेज करना? हाँ, मुश्किल ज़रूर होता है बहुत, बिल्कुल ये बात तो हकीकत है, क्योंकि औरत से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि खाना तो वही पकाएगी और अच्छा भी पकाएगी। सही है। तो ये तो लाजमी हर मर्द का ही है, लेकिन फिर भी इस मामले में अल्लाह का शुक्र है हस्बैंड थोड़े अरसे बाद जाके समझ गए थे इस बात को ना। फिर ये कि थोड़ा काम करना आसान हो गया था जब उनको बात समझ में आ गई थी ये कि जब हमने मिल के काम करना है तो बहुत आगे इसको लेके चलना है जिस तरीके से भी ना। हमारे देखने वालों को बताइए आपका पेज किस नाम से है ताकि उनको भी पता चले और आपके पास मजीद ऑडियंस आए। जी, मेरा नाम है फैशन हुड के नाम से। पीछे मेरा लोगो भी मास्टर से स्क्रीन पर चल रहा है, अगर आप लोगों ने वहाँ भी देखना हो। फैशन हुड के नाम से मेरा ब्रांड है। पिछले 8 से 10 साल हो गए, तकरीबन 10 साल होने को आ गए। हम लोग जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, अपने पेज को रन कर रहे हैं और अपने काम को मजीद ग्रूम कर रहे हैं। अपनी ओन मैन्युफैक्चरिंग हमारी ज्वेलरी की होती है। मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरी के बाद हम लोग अब, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स को नीड थी कि उन्हें खुसास वगैरह भी हम लोग इंट्रोड्यूस कराएं, तो माशाल्लाह से सारे डिज़ाइनर खुसास, शूज़ वगैरह, फिर ड्रेसेस की तरफ आए। हम लोग से खुद से डिज़ाइनर ड्रेसेस जो है मैं खुद करके, और फिर उन लोगों से यानी हम अपने काम को मजीद आगे से आगे लेके जाएं। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक आपको एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ मौजूद हैं शुमैला खान साहिबा जिनको आज अवार्ड मिला है और इनसे बात करते हैं। मैम, आपको किस फील्ड में थी, आप किस चीज़ में आपको अवार्ड मिला है और ये कितना इंकरेजमेंट है एज अ वुमेन के आज पूरा इवेंट जो है ऑर्गेनाइज हुआ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुमैला खान है। मैं एज अ डिज़ाइनर भी काम करती हूँ और मैं अपना बिज़नेस ऑन करती हूँ, घर से ऑनलाइन बिज़नेस करती हूँ। सही है। तो मैंने जब ये काम शुरू किया था तो मुझे खुद इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी। और आज अल्लाह का शुक्र है कि आप देख रहे हैं कि जो वुमेंस डे पे औरतों को अवार्ड दिया गया उनकी जर्नी पर। तो मैं समझती हूँ कि हर औरत जो आजकल बहुत ज़्यादा ही रुझान बढ़ गया कि औरतें घरों से काम कर रही हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही एक इनकरेज करने वाली बात है कि हाँ वो भी आएँ आगे अपनी फील्ड से। और पहले हम लोग ये समझते थे, शायद हमें खुद भी इतना यकीन नहीं था, मगर जो बात है जैसे कि गवर्नर साहब ने भी कहा कि अपनी औरतों को जो है एम्पावर करें, तो ये आज वाकई मोमेंटम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोमेंटम कितना डिफरेंट काम कर रहा है? जी, मोमेंटम बाय हिरा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं और हमने बहुत सालों एक साथ काम किया है। तो वो मेरी जर्नी जानती थी और उन्होंने हमसे जर्नी शेयर करने को कहा था। तो जब हमने अपनी जर्नी उनको बताई भी, दिखाई भी, तो उन्होंने उसमें से 15 लेडीज़ को चुना गया। तो वैसे तो हर लेडीज़ अपने आप में एक अच्छा काम कर रही है। अगर हम जब बिज़नेस नहीं करते थे तब भी हम अपने घरों में जो अपने बच्चों को संभालते हैं, अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली, वो भी औरत के लिए बहुत बड़ा काम है। मगर जब हम उसके अलावा कुछ कर रहे होते हैं, हमने ये देखा माशरे में औरत को अप्रिसिएशन नहीं मिलती जो आज मिली हमें। बिल्कुल, अभी थोड़े सालों तक, 2-3 साल पहले तक भी मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं शायद मैं अकेले इसको जर्नी को लेके आगे जा पाऊंगी, मगर थैंक्स टू अल्लाह एंड माय फैमिली, मेरे हस्बैंड ने मेरे बहुत सपोर्ट की। जैसे कि सभी जितने भी आए थे और उन्होंने कहा कि हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए, भाइयों को। तो ये बात ठीक है कि अगर आपके पीछे आपकी बैक मजबूत ना हो तो आप और एक औरत कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे कहा जाता है कि मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, ऐसे आज की औरत के पीछे उसकी फैमिली का हाथ। थैंक यू मैम। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम हमारा बड़ा जबरदस्त लगा होगा और हमने कोशिश करी कि आपको मैक्सिमम लोगों के साथ जो है ना वो कोऑर्डिनेशन कराएं और आपको बताएं मोमेंटम के बारे में भी कि कितना मुख्तलिफ काम कर रहा है, औरतों को किस तरह अप्रिशिएट कर रहा है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपने अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहा करे। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, नहीं आ रही, और आप क्या समझते हैं कि हमें मज़ीद किस तरह का जो है प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए या कैप्चर करना चाहिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के मान।